السلام علیکم ناظرین، میں جاوید عالم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل @ویس راجہ 786۔ میں اس وقت بنگال کے صوبے مالدہ شہر سدولہ پور میں موجود ہوں۔ یہاں عظیم شخص کی درگاہ شریف ہے جو چشتیہ نظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ عثمان سراج الدین آئین ہند علیہ الرحمٰن کی درگاہ ہے۔ چلیے یہاں کی زیارت کریں اور کچھ ان سے جڑی ہسٹوری آپ کو میں بتاتا چلوں۔ آپ کی ولادت 1298 میں ملک ہندوستان کے صوبہ لکھنؤتی میں ہوئی۔ لکھنؤتی علاقے میں پڑتا ہے۔ آپ کو آئین ہند کا لقب آپ کے پیر و مرشد حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے دیا تھا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ ان کے پیر و مرشد کوئی اور نہیں، دلی کے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہیں۔ آپ کے تعلیم اور ترغیب کے لیے آپ دلی گئے، دلی کا سفر کیا۔ ان دنوں پورے ہندوستان میں محبوب الہی کی روحانیت اور مغفرت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ آپ تعلیم کی غرض سے انہی کے پاس گئے جہاں انہوں نے آپ کو اپنی خانقاہ میں رکھ لیا اور آپ کی تربیت شروع ہوئی۔ آپ مرشد کی محبت اور خدمت میں اتنا ڈوب گئے کہ آپ کی تعلیم ظاہری تعلیم نہیں ہو پائی۔ پھر آپ کے مرشد نے محبوب الہی نے تعلیم کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ فخر الدین زرادی علیہ الرحمہ کے پاس آپ کو بھیجا اور مرشد کے نگاہ کرم سے 6 مہینے میں ہی آپ سارا کا سارا علم حاصل کر لیے۔ اس کے بعد مولانا رکن الدین صاحب اور طوطی ہند حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ تربیت سیکھی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی آپ ایک بہترین عالم دین بن گئے۔ ادھر توسط پر آپ کا اثر بچپن سے ہی تھا۔ محبوب الہی نے جب آپ کا امتحان لیا تو آپ کھرے اترے تو آپ کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت و اجازت عطا کری اور آپ روحانیت اور علم سے متاثر ہو کر آپ کو آئین ہند کا لقب دیا۔ آج بھی آپ کے چاہنے والے آپ کو وہی لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بنگال جانے کے لیے کہا۔ آپ بنگال کی سفر کرتے پانڈوا پہنچے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے پانڈوا کا سفر کیا جہاں آپ کی ملاقات حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہونا تھا۔ آپ جب حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے تو بہت ہی دلچسپ واقعہ ہوا۔ مخدوم علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادموں نے کہا کہ اگر ان سے آپ ملنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کھولتے ہوئے پانی سے وضو کرنا ہوگا۔ عثمان اخی سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خادموں سے فرمایا، میں تو دلی سے آیا ہوں، صرف وضو ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس سے تو میں غسل کروں گا۔ پھر وہ کھولتا ہوا پانی لیا اور اپنے جسم پر بہا دیے۔ حضور کی کرامات دیکھیے، اس کھولتے ہوئے پانی سے آپ کو کچھ فرق نہیں پڑا، نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد آپ وہاں کہہ کے روانہ ہوئے، اب میں علاء الحق سے ملاقات نہیں کروں گا، اب علاء الحق ہی خود مجھے ڈھونڈتے ہوئے ملاقات کرنے آئیں گے۔ جب علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے ان کو خبر کی، حضرت علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، خادموں سے کہا کہ ان کو روکا کیوں نہیں۔ حضرت عثمان اخی سراج رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اور اس کھولتے ہوئے پانی کو غسل
करके चले गए। हज़रत अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह ने जब इतना सुना तो उन्होंने बहुत रंजो-गम हुआ। जिनका इंतज़ार कर रहा था, अरे बेवकूफ़! अपने खादिमों से कह रहे थे कि अरे बेवकूफ़, जिनका इंतज़ार कर रहा था वही तो मेरे पीर है। मैं उन्हीं से तो मुरीद होने वाला हूँ। फिर फ़ौरन अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह शेर पर सवार हो गए। आप जिसकी सवारी करते थे, ना घोड़ा था ना बैल था, शेर पर सवारी करते थे। तो आप फ़ौरन मालदा में शेख उस्मान सिराजुद्दीन आइन हिंद की बारगाह में पहुँचे। तो जब आप वहाँ पहुँचे तो शेख उस्मान सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मिसवाक कर रहे थे। आइन हिंद ने देखकर अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह शेर पर सवार है तो फ़ौरन कूद कर दीवार पर चढ़ गए। वहाँ मौजूद लोगों ने देखा कि शायद आप शेर से डर गए, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह वालों की करमात कुछ इस कदर होता है कि सिराज अख़ी रहमतुल्लाह अलैह डरे नहीं थे, बल्कि दीवार पे चढ़ के दीवार को हुक्म दिया। दीवार दौड़ने लगा। यह माजरा देखकर खुद अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह ताज्जुब हो गए। कहने लगे, हुजूर, मैं तो शेर का सवारी करता हूँ जो दौड़ने पर काबिल है, लेकिन दीवार तो दौड़ती नहीं है, वो तो अपनी जगह ठहरी रहती है। फिर भी आपने रुकी हुई दीवार को दौड़ा दिया। अल्लाह अकबर! वलियों की शान व मर्तबा कुछ इस कदर है कि अल्लाह ने उनको इस कदर से नवाजा है। सुभान अल्लाह। हजरत अलाउल हक पांडवी इस मंजर को देखकर दौड़ते हुए आपके कदमों में गिर जाते हैं। हुजूर, आप अपना मुरीद बनाए। इस वाक़ये के बाद हज़रत शेख उस्मान अक़ी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनको अपना मुरीद बनाया और खिलाफत अता कर दी। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप जब भी बंगाल आए तो यहाँ हाज़िरी ज़रूर दें, यहाँ दुआ मांगे। अल्लाह ताला इनके वसीले से हर दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाएगा। आमीन। हज़रत अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मखदूम अशरफ सैयद शिवनानी रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद है। सैयद मखदूम अशरफ शिवनानी की चौसा शरीफ में आराम फरमा है। हज़रत उस्मान आइन हिंद रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। उनकी लिखी हुई बहुत सारी किताबें और उनसे मशहूर किताब हिदायतुल नौम, जो आजकल की आलिम उसको पढ़े बिना आलिम हो ही नहीं सकते। ये किताब सुनाही सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस सभी फ़िरके के आलिम इसकी कोर्स करते हैं। हिदायतुल नौम और नाज़रीन, हज़रत उस्मान अक़ी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने शायरी, नात और नज़म, बहुत सारे नज़म लिखे। आप अपने पीर व मुर्शिद से इतनी मोहब्बत करते थे कि उस वक़्त तूती हिंद हज़रत अमीर खुसरो की शायरी, कविताओं मशहूर थी। हज़रत अमीर खुसरो आपके पीर भाई हैं। उनसे मुतासिर होकर एक बहुत प्यारा सा कलाम लिखा जो हर आशिक़ रसूल के ज़ुबान पर रहता है। आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ये हिजब जाना, आदिल में तुझे रख लूँ जलवाए जाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ये हिजब जाना, इतना तो करम करना ये चश्मे करीमाना। जब जान लबों पर रहो तुम सामने आ जाना। इस मशहूर नात को भी आप ही ने लिखा है। आप बंगाल में ही रह के वहाँ बहुत इस्लाम फैलाए और वहाँ एक लाइब्रेरी खुली जो अभी सैदुल मालदा में ही है, और वहाँ आप गरीबों के लिए खाना का इंतज़ाम किया। इसके अलावा आपने कुछ कीमती बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी बनाई और वहाँ पर सूफिया आते और किताबों के मुतला करते। और आपका विशाल
1357 ईस्वी में दुनिया को फानी को छोड़कर अलविदा कह दिए और 758 हिजरी सवाल एक आपका उर्स सवाल महीने का 1 तारीख को सदुल्लापुर में लगता है। हाजरीन नाजरीन आप लोग यहाँ पर आए और सब आपके नियत से आए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दरगाह है। आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके पीर मुर्शिद चिश्तिया ख्वाजा गरीब नवाज तक मतलब कि पहुँचता है। इनके पीर मुर्शिद हज़रत उस्मान फकीह सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीर मुर्शिद हज़रत निजामुद्दीन औलिया के पीर मुर्शिद हज़रत गंज सक्कर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत गंज सक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हज़रत काकी बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह और काकी बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है। आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े बुजुर्ग हैं। और इनके सबसे चहेते मुरीद हज़रत अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि किछौशा शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के ये दादा पीर हुए। और मस्जिद के ऊपर से कुछ वहाँ का नज़ारा लिया गया है। ये चारों तरफ से ये सदुल्लापुर है। यहाँ चारों तरफ से आम के बगीचे हैं जो आम मालदा आम से मशहूर है। मालदा आम यहीं की नस्ल है, इसीलिए इस शहर को मालदा टाउन कहा जाता है। ये मालदा टाउन स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है सदुल्लापुर। और मालदा टाउन से ही आप पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बरगाह पांडवा शरीफ जाना चाहते हैं तो 16 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको कोई भी टेम्पो ई रिक्शा यहाँ तक पहुँचा देता है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और पूरी की पूरी वीडियो देखें। ये हिस्ट्री तब समझ आएगी आप लोगों को। और मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।